session, we have lots of learned speaker, including we have four presentations in this session. And you all know very well the theme of this whole conference, that is the revival of Indian perspective and lifestyle to combat COVID-19 pandemic with reference to Sanskrit literature. To start with, I would like to inform you all that in this session, we have four presentations, two of our speakers from the abroad itself. And this current session is being chaired by Professor K.K. Srivastav, sir, he is here with us. Professor K.K. Srivastav, sir, are you He is there, here. sir? Yes, Yes, he is here. Okay, sir, I welcome you on behalf of Waves and as the moderator of this session. And with your permission, I now like to call upon our first speaker, Professor Balram Singh Ji. He's scientist, and before his presentation, I would like to give a brief intro about him. Please continue. Professor Balram Singh, sir, is the president of Institute of Advanced Sciences, Dartmouth, USA. He has been professor of chemistry, biochemistry, biology, and the founding director of Center for Indic Studies at UMass Dartmouth. There is some echo at the back. He writes on value of ancient Indian traditions for the modern times. His research includes Ayurvedic science and technology, yoga and consciousness, Vedic education and Vedic education pedagogy, and Vedic social and political traditions. He's also a fellow of Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Study, that is JNU, New Delhi. He is a member of board Waves USA. He's editor-in-chief Waves blog. Also, he's a managing editor of Ayurveda Journal of Health. And I'm working with him only at Institute of Advanced Sciences, Dartmouth. So I welcome you, sir, for your presentation. The topic of your presentation is, just a minute. I think I know, don't worry. Okay, sir. Okay. Hello, sir. Namaskar. Namaskar. Sir, you would like to give your topic yourself? Welcome, sir. Welcome. I will, don't worry. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. I appreciate this opportunity. I know I'm quite far away and I'm missing, as we all are missing, to have a tea together and chat about many of the things. But, you know, this is an opportunity to bring up some of the things that have not been brought up over a long period of time. And I was I'm very grateful to Professor Sasi Tiwari ji, who contacted me for this. And Dr. Anita Sengupta has done a marvelous job of organizing this symposium and conference. And I have been listening to Professor Haridas Sarma. Of course, I know him from a long time. It was wonderful to see him and listen to him. And the principal of the college, Dr. Singh, was a very effective, even though he's a historian, but I think he brought really a great history of Indian traditions. So I'm very inspired to speak a little bit that I know, and my presentation is going to be a maybe slightly different tinge, but I hope that will be useful to you. I'm going to share, if it is okay, to share my screen so that I can, you have to enable me, please. Somebody enable me to, so that I can share my screen. Technical people, please enable me so that I can share my screen. Okay, thank you. That's very helpful. So I'm going to share my screen, and that has the topic as well. My topic is scientific nature of Indian traditions and culture relevant to health and wealth, which generally covers the revival. I think revival is a very important issue, and I think the more that is addressed, the better it is. I think normally whenever I go to conferences, I will switch to Hindi. I do know how to speak Hindi, so I will switch soon to Hindi. What I was saying is that the revival is very important issue, and how we do it really the main issue. We know that we have a lot of great things, and I think there is a lot of discussion about it on various forums for over
couple of decades that I have heard. So I will try to see if I can put some ideas about the what can be done and what should be done, or what is being done. With that, एक तो कि कोरोना के टाइम में हो रहा है ये हमको देखना है, तो उसकी जो कोरोना की अपनी समस्याएं हैं, उससे जो भी लोग सारी दुनिया जूझ रही है, टेस्ट करना है, उसको लोगों को सुविधाएं देनी है, ट्रीटमेंट देने हैं, और बिजनेस को शुरू करना है, हमारे खान पान को अपने ठीक करना है। एक शब्द है यहाँ पे, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब हमारी आंतरिक शक्ति जो होती है, क्षमता होती है, वो हमारे शरीर में ट्रिलियन मतलब अरबों खरबों वायरसेस घूमते रहते हैं हमारे शरीर में। अगर वो नहीं हो तो हमारा शरीर चले भी नहीं। ये भी है, हमारे बहुत मित्र विषाणु भी, जिसको विषाणु कहते हैं, वो विष जो है, एक शब्द है संस्कृत में, क्योंकि ये संस्कृत डिपार्टमेंट ने इसको किया हुआ है, उसको कहते हैं विषौषधि। मेरी एक कंपनी थी, मैं उसका नाम विषौषधि रखा था। अभी भी एक मेरी कंपनी है भारत में, उसका नाम विषौषधि। जिस मैटर पे मैं काम करता हूँ, मेरा रिसर्च है, वो एक प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो विष है। इतना बड़ा विष आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा। वो अगर आपने, मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, अगर केमिस्ट्री में साइनाइड का नाम सब जानते हैं, साइनाइड से 100 बिलियन टाइम्स बिलियन टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक जहर है, वो विष है। लेकिन उसी की औषधि भी बनी हुई है। उसकी औषधि को बोटॉक्स कहते हैं। अगर कुछ लोगों ने सुना होगा, जिससे वो झुर्रियां खत्म करता है, चेहरे की झुर्रियां खत्म करता है, वैसे भी और बहुत सारी बीमारियों को खत्म करता है। तो ये इनेट हमारी आंतरिक क्षमता है, वो बहुत सारे, जिसको विषाणु कहते हैं, उनको औषधि भी बना के अपने शरीर में रखता है। अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया ज्यादा हैं, हमारी अपनी कोशिकाएं कम है, कम से कम 2 गुना बैक्टीरिया हमारे शरीर में ज्यादा हैं। कोशिकाएं हमारी 40 ट्रिलियन है और बैक्टीरिया 100 ट्रिलियन है। तो बैक्टीरिया, अगर सारा कोई बैक्टीरिया एक दिन ये कर दे, हम लॉकडाउन करते हैं, तो हमारा शरीर एक दिन भी नहीं चलेगा, ये इतना ज्यादा हमारी डॉक्टर आनंद शंकर सिंह जो बात बता रहे थे कि हमारी सोच अपने लिए होती ही नहीं है, हम तो पूरी समष्टि के लिए सोच रखते हैं, और उसी में हमारा जीवन है। अगर नहीं, उसमें हमारा जीवन नहीं मेल खाता है, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और फिर अर्थ का भी मतलब उन्होंने किस तरह से अच्छे से बताया कि अर्थ होता क्या है। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी है, इसकी बड़ी महिमा है। और हमारे यहाँ जो भोजन करते हैं, उसकी भी बड़ी महिमा है। उसकी पूजा करते हैं, उसको देवता मानते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसी से हमारा पालन पोषण होता है। उसको उस तरह से अगर समझे तो दूसरी बात होती है। और फिर कोरोना तो एक दिन खत्म होगा, और ये एजुकेशन की बात है, जो कि प्रैक्टिकल बात होने वाली है, वो होगा। तो ये हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि हम ये एजुकेशन के जरिए किस तरह से कुछ चीजें कर सकते हैं। अब हमारे पास सुविधा क्या है, रिसोर्स की बात हो रही थी, ह्यूमन रिसोर्स। क्या ह्यूमन को हम रिसोर्स माने? नहीं मानते ह्यूमन को रिसोर्स, अगर नहीं मानते, क्योंकि वो कोई चीज मैटर नहीं है। लेकिन लोग तो हैं, और वो तो बहुत बड़े रिसोर्स हो जाए। अगर रिसोर्स साधन की बात कहें, तो अगर हर व्यक्ति के, हमारे यहाँ पे ईश्वर मानते हैं, हर व्यक्ति के अंदर अनंत शक्ति होती है, तो वो तो हम तो सारी संसार की सेवा कर सकते हैं, सारे ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हैं, ये मान के चलते हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि हमको ग्लोबल व्यू रखना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात है ही है, हमारे यहाँ पे बहुत बार कहा गया है इस चीज को। और वसुधैव कुटुंबकम का प्रैक्टिकल जो मतलब निकलता है, वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। ना तो संविधान के जरिए हो रहा है, ना किसी के मान के जरिए हो रहा है, ना किसी व्यवस्था में हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम सीखना पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम, जैसे माँ की गोद से बच्चा प्रेम करना सीखता है। माँ को जो प्रेम करता है, तो वो प्रेम ये नहीं सिर्फ माँ तक सीमित हो। प्रेम का मतलब होता है कि वो माँ से प्रेम सीख के, जैसे कि हमारे क्लास में बच्चे आते हैं, उनको हम मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उसका मतलब नहीं कि वो क्लास में बैठा रहे और सिर्फ उसी चीज को पढ़े। ये हमारे यहाँ की थोड़ी कमी है, इसको दूर करना चाहिए। उसका ये मतलब होता, अर्थ ये होता है कि वो उस चीज को, ज्ञान को लेके अब संसार में जाए और उसको बांटे। उसी तरह से माँ से प्रेम का जो पाठ पढ़ता है, उस प्रेम के पाठ को लेके सभी से उस तरह का प्रेम करना सीखे।
ये बात है। उसी तरह से वसुधैव कुटुंबकम मतलब पहले अपना कुटुंब में रहना, अपने कुटुंब में रहना सीखो। अपने कुटुंब में मतलब सिर्फ माता पिता ही नहीं होते, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है उसमें अपने ही बच्चे को, अपने ही पुत्र पुत्रियों को अपना नहीं मानते, बल्कि अपने भाई के पुत्र पुत्रियों को, रिश्तेदारों के पुत्र पुत्रियों को। यहाँ तक कि मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, जैसे वहां पे हो रहा था कि डॉक्टर आनंद शंकर सिंह ने ये कहा कि हमारे यहाँ तो संबंध होते हैं, हमारे यहाँ स्त्री पुरुष नहीं होते हैं। हमारे गांव में मुझे कोई डॉक्टर सिंह नहीं कहता, कोई बलराम सिंह नहीं कहता, सारे लोग कोई काका बोलता है, कोई बाबा बोलता है, कोई नाना बोलता है। यहाँ तक कि फेसबुक पर भी हमको इसी तरह से लोग संबोधित करते हो। कभी कभी मैं उनको जानता भी नहीं कौन है वो, फिर बाद में पता करना पड़ता है हमारे गांव का है, हमारे पड़ोस का है, इस तरह का। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। तो ग्लोबल जाने का मतलब इस भाव से जाना। तो साइंटिफिक टेनर, ये इसकी जो ये बात एक बहुत जरूरी चीज है जो कि सिर्फ भारत के संविधान में है, वो ये है कि ये लिखा हुआ है उनके फंडामेंटल ड्यूटीज में कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। इसलिए हम जो आज बोल रहे हैं, आप लोग तो बड़े विद्वान हैं संस्कृत के और दर्शन के, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं संविधान युक्त, संविधान जनक बात कर रहा हूं, जो कि साइंटिफिक टेम्पर हमारे यहाँ होना चाहिए। और बाय द वे ये चीज किसी दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। ये सिर्फ भारत में, और संविधान में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, मुझे भी आपत्ति है उससे, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये जानना है कि भारत की जो ये व्यवस्था है उसमें साइंटिफिक टेम्पर कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो साइंटिफिक है क्या चीज, साइंस है क्या? साइंस की परिभाषा मिडिल स्कूल की है, सिस्टमैटिक होना चाहिए। उसके बाद न्यूटन ने ये परिभाषा दी कि वो नॉन फॉल्सिफाइबल होना चाहिए। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे हमारे यहाँ डबल नेगेटिव बहुत यूज किया जाता है, भारत की संस्कृत की ये परंपरा रही है। जैसे यम को यूज किया जाता है, उसमें नियम फिर यूज किया जाएगा, इस तरह के बहुत सारे, निरोध किया जाएगा, रोध होता है वो भी नेगेटिव है, लेकिन निरोध उसका नेगेटिव का नेगेटिव होता है। तो इस तरह से यहाँ पे नॉन फॉल्सिफाइबल, न्यूटन ने कहा कि हर चीज का मतलब ये होता है कि हम उसको, जो भी हमारे विचार हों उसको फॉल्सिफाई करने का प्रयत्न करें। फिर वो जिससे इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि सिर्फ अपनी विचारधारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि संसार तो अनंत है। तो ये अनंत को समझने की परिभाषा है, और उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब फैक्चुअली होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ विचारधारा रख रहे हैं। और अब ये आधुनिक विज्ञान ऑब्जेक्टिविटी को मानता है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि जिससे किसी तरह का बायस, किसी तरह का पक्षपात नहीं हो, हम निष्पक्ष हो। और वो निष्पक्ष होने की जो बात है वो भारत में बहुत ज्यादा कही गई है। डिटैच, जिसको तटस्थ भाव से देखते हैं, तो भारत की जो परंपरा ही साइंस की है, तो इसलिए हर चीज को हम साइंस के जरिए देख सकते हैं। और उसमें अगर ये देखें तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जिसमें कि मैं अपने मन को ही एक पूरी तरह से संयमित करके, या कि उसको स्टिल काम करके, उसको शांत करके मन के आगे की बातों को समझते हैं, क्योंकि मन जो है चीजों को बहुत तरह से दलित कर देता है। तो उसके लिए ये पातंजलि योग सूत्र का है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। अब ये तप करिए और स्वाध्याय करिए, मतलब अपना ही अध्ययन करें, अपना आत्मबोध करें, और ईश्वर में ईश्वर को समर्पण करें। हर कार्य को योग मान के उसको ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करें। क्या हो रहा है दूसरे किसी का, हमारे इसमें स्क्रीन में लिख रहा है, देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं कहीं से कोई गलत व्यक्ति आ गया हो और कोई इधर कर लेते, तो आप जरा टेक्निकल वाले प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित होके हर कार्य को उसमें तप करके और स्वाध्याय करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी से सबका कल्याण हो सकता है। और ईश्वर की परिभाषा जो है वो बहुत ही, वो गॉड से कोई लेना देना नहीं, गॉड से एकदम से लेना ही देना नहीं। इसमें ईश्वर की परिभाषा ये कहा गया है, जिसके अंदर किसी तरह का क्लेश और कर्म फल से जो परे हो जाए तो वही ईश्वर है। वो हम आप कोई भी हो सकता है, ईश्वर बना जा सकता है। हमारे यहाँ की सिर्फ भारत में परंपरा है, यही एक परंपरा नहीं कि भारत में ईश्वर प्रकट होते हैं,
बल्कि हर कोई भी ईश्वर की स्थिति पे पहुंच सकता है। तो ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों एक जगह मिल जाते हैं। इस तरह के भाव से हम हर भारत की परंपराओं को अगर देखें तो हमको ज्यादा समझ में आएगा और ये चीज हम सारे विश्व में आगे बढ़ा सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो अब थोड़ा सा साइंस मैं बताता हूं, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं कुछ बातें कहना चाहता जो कि सिर्फ कुछ साइंस के टर्म से कह सकता हूं, कह पाता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये जो ये बाईं तरफ जो ये चित्र है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक अडाप्टिव इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी जो हमारी आंतरिक क्षमता है, ये अडाप्टिव जो है हम उसको अक्वायर करते हैं, वो तब इम्यूनिटी मिलती है जैसे वैक्सीनेशन से। ये हमारे प्रकृति में है, और ये प्रकृति जो है वो माँ से बच्चे को मिलती है ये क्षमता, लेकिन शुरू में जब माँ के गर्भ से बाहर बच्चा आता है तो उसकी इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी होती है, तो वो कम रहती है, इसलिए बच्चों को इन्फ्लुएंजा या इस फ्लू टाइप की चीजें ज्यादा होती हैं। क्षमा कीजिएगा। तो ये इम्यूनिटी यंग लोगों में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप देख रहे हैं कोरोना में यंग लोगों को ये बीमारी नहीं हो रही, अगर हो रही है, अगर होती भी है तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस भी कोई कम नहीं है, वो इस इनेट इम्यूनिटी को खत्म करने की कोशिश करता है, ये इसकी विशेषता है, इसलिए कोरोना वायरस से हमको परेशानी होती है। लेकिन मेरा ये यहाँ पे उद्देश्य आप लोगों को सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी पढ़ाने का नहीं, बस ये सिर्फ ये बताने का कि हमारे प्रकृति में हमारी आंतरिक क्षमता है, और उस आंतरिक क्षमता को हमारे परंपरा में कैसे देखा गया है, ये चीज हम बताना चाहते हैं। उसको देखने के लिए आप देखेंगे कि ये पब्लिकेशन है, बहुत पुराना 2019 का है, जिस कोरोना की क्राइसिस के पहले की बात है। ये तो एक ही पेपर, कई पेपर हैं। ये जो पेपर होता है ना, काली मिर्च जो है हमारी आंतरिक क्षमता को बढ़ाता है, तो हमारी परंपरा में है काली मिर्च। हम तरह तरह के मसाले, तरह तरह के भोजन पदार्थ में रखते हैं, चाय में तो रखते हैं, इस तरह की बहुत सारी, अगर किसी को गला खराब होता है तो भी उसमें साथ में डाल के थोड़ा सा पेपर लेता है, ये परंपरा में है। उसी तरह से एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, लिकरिस जो है मुलेठी होती है। अब इसमें लिखा हुआ है चाइनीज हर्ब, क्योंकि ये चाइनीज ऑथर हैं इसके, लेकिन ये भी लिकरिस मुलेठी जो है वो भी बहुत फायदा करती है आपको, एंटीवायरल, और ये भी इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाती है। नीम जो है, नीम के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि वायरसेस को खत्म करते हैं और उसके वातावरण को ही शुद्ध करते हैं, सिर्फ वायरसेस को नहीं खत्म करते। नीम की तो बहुत महिमा है, और उसकी इस पर रिसर्च आपके भारत में से ज्यादा अमेरिका हुआ है, और इस समय मेरे पास समय नहीं उस बात को पूरा बताने के लिए, लेकिन कि जो इसमें नीम में जो गुण हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, और ये गांव की जो परंपरा होती है, नीम के पेड़, शहर में तो आप लोगों के पास शायद नहीं होता होगा, उतना नहीं है, लेकिन गांव में हर घर के सामने एक नीम का पेड़ होता है, और वो ज्यादातर वहां पे परंपरा है कि कोई जो वृद्ध, सबसे बुजुर्ग जो स्त्री होती है घर की, माँ, दादी, मामी, जो भी कोई होता है, वो उसमें नीम में पेड़ में पानी डालते हैं, बिना पानी, मेरी माँ थी, जब बिना पानी डाले, नीम के पेड़ में बिना पानी डाले वो अपने मुंह में पानी नहीं डालती। उसका एक इतना बढ़िया हेल्थ केयर व्यवस्था बनाया था उन्होंने, कि जब अगर कोई वृद्ध महिला होगी तो घर से दूर ज्यादा नहीं जा सकती, इसलिए नीम के पेड़ घर के पास होगा, और उसको इतना नियम बना दिया गया है कि उसके अंदर अगर वो डालेगी पानी तो वो निश्चित रूप से वो नीम का पेड़ बढ़ता रह जाएगा। और उसके मेरी माँ, मैं उस समय जब विज्ञान पढ़ने लगा तो मैंने थोड़ा सा वो परिहास किया अपनी माँ का, और आज मुझे शर्मिंदगी लग रही है, क्योंकि मैं अब आज इन्फेक्शस डिजीज में काम करता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं उस समय मूर्खता किया था। लेकिन मैंने प्रयास ये किया था, ये जल में तो इसमें नीम के पेड़ में जल क्यों डालती हैं, तो उन्होंने कहा इसमें शीतला माता रहती हैं। अब वो शीतला माता कौन है, वो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। वो एक मूर्ति रूप बना दिया गया, जो कि बीमारी की एक परिभाषा है शीतला माता का, और उसको उनको खुश रखने के लिए नीम रखना पड़ता है, जिससे कि नीम के एंटीसेप्टिक जो पदार्थ हैं वो घर के चारों तरफ फैले रहेंगे और लोगों को बीमारियां नहीं होंगी। तो ये भारत की परंपरा है, और भारत की परंपरा सिर्फ ये नीम वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कि हम स्वास्थ्य को कैसे बचा के रखते थे, पर्यावरण के साथ कैसे काम करके उनके सामंजस्य से कैसे आगे बढ़ते थे, ये परंपरा है।
और इसी तरह से ये हमारे यहाँ यजुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि जो जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, उसके उसके हिसाब से हमारे अंदर जो ये विगर और वाइटलिटी आती है, जो औषधि, जो हमारे अंदर शक्ति होती है, वो आंतरिक शक्ति भी उसमें आती है, वो बनती है। तो इसलिए हमको जान समझ के वो करना चाहिए। इसी तरह से माइंड बॉडी थेरेपी मतलब योगा और लाइफस्टाइल, उठने की कब उठें, कब सोएं, कब जागें, कितना सोएं, कितने अच्छे से सोएं, और योग करें, अब ध्यान करें। इससे ये स्टडी हो चुकी है कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो ये भी हमारे यहाँ की परंपरा है जिससे कि ऐसा होता है। अब मैं एक बात आयुर्वेद की, अपर्णा ने कहा था कि मैं आयुर्वेद पे भी थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, तो हम रिसर्च एक्चुअली मैंने आवश्यकता बस ये शुरू किया, ऐसा मेरा इंटरेस्ट पहले शुरू में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में भस्म जो है, आयुर्वेद का जो भस्म है वो बैन किया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले ये मानते हैं कि जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, ये और भी हैवी मेटल्स हैं, गोल्ड है और सिल्वर है, ये सारे हैवी मेटल्स हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक, ये टॉक्सिक होते हैं। अब वो भस्म की परिभाषा जो है, भारत में भी व्यवस्था तो है सबको, लेकिन पूरी तरह से भस्म को वो राख मानते हैं। तो हम लोगों ने ये रिसर्च किया। मैं इसमें फिर भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसमें साइंस की ज्यादा समझने की जरूरत है। ये जो हमारी रिसर्च है, उसमें हमने ये देखा कि इसमें जो भस्म जो है, वो भस्म राख नहीं है, बल्कि नैनो पार्टिकल्स हैं। और ये नैनो मेडिसिन का 3000 साल पुराना इतिहास है। हमारे यहाँ आनंद शंकर जी को शायद ये अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद का जो इतिहास है, ये नैनो मेडिसिन जो कि आज के युग में करीब 20 साल से बात हो रही है इसकी, ये हमारे यहाँ 3000 साल पहले से हो रहा है, लेकिन उसको हमने राख बना दिया और इसलिए कोई इसको समझ नहीं पाता। तो हमारे यहाँ ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं, उनकी सच्चाई, सच मीनिंग जो है सबके सामने आनी चाहिए। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो इसका मैकेनिज्म है, वो क्या करता है कि दो कोशिकाओं के बीच में जगह कर देता है। इसे दवा अगर साथ में इसके भेजते हैं, तो वो दवा अंदर आसानी से चली जाती है, उसको बायो इन्हांसर कहते हैं। तो अब ये वो तो ठीक है, जो जो हमारी विज्ञान में या बायोकेमिस्ट्री में ये बात हो रही है, लेकिन इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी रुचिकर है। ये पहले गोमूत्र में डाला जाता है, जो पारंपरिक व्यवस्था है, उस अभी तो आधुनिक व्यवस्था से भी बन जाता है, हमारी लैब में भी बनता है ये, लेकिन गोमूत्र में डालते हैं क्योंकि उससे नाइट्रेट होता है, मूत्र में नाइट्रेट होता है, तो नाइट्रिफिकेशन होता है। फिर उसमें गोबर में डालते हैं, उसमें सल्फाइड होता है, तो उसका सल्फर ग्रुप उससे जुड़ जाता है। ऐसे करते करते बहुत सारे स्टेप्स हैं, 42 स्टेप्स होते हैं। इसको लास्ट में लिखा हुआ है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको शोधना कहते हैं। उसके बाद उसको प्रिजर्व करते हैं। अब ये बड़ी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भस्म तो भस्म ही है। ये एक स्टूडेंट हमारी सिरिसा मुकावली ने इसमें पीएचडी किया, तो सारे इसी भस्म को एज नैनो मेडिसिन मान के। तो भस्म का ये आप लोग हो सकता है कि हमसे सहमत ना हो, लेकिन मैं अभी हाल पिछले 2-3 महीने में ही मैंने भस्म की अपने आप ही एक वो व्युत्पत्ति निकाली। भस्म का मतलब होता है निस्तेज करना, जैसे यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और उसमें भा शब्द जो है, भा जो अक्षर है या शब्द माने उसमें, क्योंकि वो लगा हुआ है, तो उसको हम चमक, तेज, प्रचंड या सूर्य की तेज इस तरह से मानते हैं। और माँ का मतलब होता है रोकना। तो जो उसकी टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करना, निस्तेज करना भस्म है। इसका मतलब उसको फिर अब दवा के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा विषौषधि का ये भी एक श्रृंखला में वही चीज आती है। तो ये हमारे जब तक संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा और इसको हम जब तक दिखाएंगे नहीं, संसार इसको मान नहीं पाएगा। मैं ये थोड़ी सी अपनी प्रमोशन करना चाहता हूँ कि मैंने एक किताब लिखी हुई है। मेरे विचार आते क्यों है इस मेरा प्रमोशन का इतना यहाँ पे उद्देश्य नहीं, जितना कि ये बताने की कि मैं इस तरह की चीजों को सोचता क्यों हूँ, क्योंकि मैं भारत से दूर हूँ और कंपेयर कर सकता हूँ और चीजों से तुलनात्मक कर सकता हूँ। पढ़ना अगर जैसे मेरा समय होने लगेगा तो आप बता दीजिए, किसी शंका के संकोच के बिना तो हम खत्म कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सारी बातें अपनी करूँ। तो ये हमारे विचार जो है, मैंने एक किताब लिखी, ए डिफरेंट टेक, एन एनआरआई व्यू ऑफ इंडिया इन द ट्रेडिशन ऑफ रामकृष्ण एंड गांधी। क्योंकि गांधी जी भी, रामकृष्ण को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ पे समय नहीं कि मैं उसको इलाबोरेट करूं। गांधी जी भी स्वतंत्रता की, भारत की स्वतंत्रता की बात जो है वो कभी भारत में नहीं किए थे। जब भारत से बाहर गए तब उनको दिखाई पड़ा, क्योंकि उन्होंने जाके ये लंदन में ये देखा कि ये संसार किस तरह से अपने देश को देखता, हमारे देश को देखता। उसी तरह से मैं वैज्ञानिक हूं, तो मैं वैज्ञानिक रूप से
भारत की परंपराओं को देख रहा हूँ। अभी भी मेरा परिवार संयुक्त परिवार है और गांव में रहता है। मैं जाता हूँ तो गांव में रहता हूँ, और तभी मैं बता रहा हूँ कैसे वहां पे संबंध में कैसे लोग हमको किसी तरह से संबोधित करते हैं। वो कभी कोई हमारे नाम से कोई संबोधित नहीं करता है। तो उसी श्रृंखला में मैं अब थोड़ा और बात बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे भारत की इस समय की जो व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था, और राम राज्य की बात भी कही गई। आनंद शंकर जी ने ही कहा राम राज्य की बात। तो हम राम राज्य की बात को ये कहना चाहते हैं कि राम राज्य जो है वो प्रजातंत्र था, और इसमें मैंने फिर से ये निकाला हुआ है, इसका व्युत्पत्ति जो है, प्रा का मतलब होता है इंटेंस ब्राइट, और जा का मतलब क्रिएटिव, जिसको आजकल स्किल बोलते हैं ना, स्किल एजुकेशन दिया जा रहा है। तो प्रजा जो है, जो गांव से जुड़े हुए होंगे लोग, वो जानते होंगे गांव में अभी भी एक प्रजा का समुदाय है, जो कि जिसमें धोबी और नाई और कुम्हार, कहार, लोहार, ये लोग आते हैं। और उनकी एक खासियत यह है कि वो नौकरी नहीं करते, आज भी वो नौकरी नहीं करते। तो इस तरह से प्रजा की ये व्यवस्था थी, जो कि नौकरी ना करने वाली व्यवस्था है, कि नौकरी करने वाला व्यक्ति दास जो है वो मुक्त भाव से नहीं सोच सकता, उसको मोक्ष कभी मिल ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कितना भी कर डाले। इसलिए प्रजा डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड करती है इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट पॉपुलेशन विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ये चीज अभी आप हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने ये सेल्फ रिलायंस की बात की है। अब देखने वाली बात है कि ये होगा कि नहीं होगा। कहने के लिए जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे नारे लगते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति की, सत्यमेव जयते की, तरह तरह के नारे लगते हैं, लेकिन वो कभी कार्यान्वित हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, ये चीज हमारी समस्या है। तो इसमें हम ये देखते हैं, हम निकाला ये, इसमें अपर्णा भी हमारे साथ काम करती हैं। ये अपर्णा की किसी पेपर का, ये वहां से हमने स्लाइड लिया हुआ है। उसमें वैदिक चिंतन में अब ये देखेंगे, जो लोहार, बढ़ई, सुनार, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये प्रजा वर्ग हैं, और इनके सबसे सर्वोच्च कौन है? विश्वकर्मा देवता है। उसी तरह से प्रजापति भी आज कुम्हार लिखता है, ये भी आते हैं, और उसके सबसे बड़े कौन है? प्रजापति हैं। प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही होते हैं, वो सृजन करते हैं, सृष्ट करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनसे ओतप्रोत है। तो ये जिसको हम आज प्रजा कहते हैं, ये प्रजा की जो भावना है वो कहाँ है हमारे पास? हमारे पास तो ये हो रहा है, हम किसको किसको नौकरी देंगे, कितनी सर्टिफिकेट मिलेगी, किसको कौन सा असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बनेगा, ये सब चक्कर में फंसे हुए हैं। तो हमारे यहाँ की जो अपनी व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और उसको हो सकता है कि आज के युग में, जबकि कोरोना की वजह से सबको वापस गांव जाना पड़ रहा है, अब ये लोग, बड़ी तकलीफ की बात है वापस गांव जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे तकलीफ की बात है गांव से वापस शहर में आना क्यों पड़ा। उससे ज्यादा तकलीफ है कि गांव से शहर में आए क्यों लोग, क्योंकि हमने ये व्यवस्था तोड़ दी, ध्वस्त कर दी। और आज भी जो हमारी व्यवस्था है वो भी यही करती जा रही है। अब आप देखेंगे वैदिक व्यवस्था में ये है कि मानव ही प्रजा है ये, और फिर वर्ण व्यवस्था का उन्होंने पूरा बात बताया कि किस तरह से मुख क्या है ब्राह्मण है, बाहें क्या क्षत्रिय हैं, उदर क्या वैश्य है, और पैर क्या शूद्र हैं। अब उसको लोग बोलते रहे, तो नीचे वाला पैर की बात है, वो शूद्र की बात, हम उसको नीचा मानते हैं, और शायद व्यवहार में भी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमको ये देखना चाहिए कि ये इस चीज का सही, पहली बात विश्लेषण, फिर उसकी व्याख्या, और उसके बाद उसको क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा प्रयत्न किया हुआ है कि, जो कि मैं है तो विज्ञान का, लेकिन मैंने संस्कृत आपके कुछ व्याख्या करने का प्रयत्न किया और धृष्टता किया हूँ। और उसमें आप देखेंगे तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, इसमें गुण कर्म के आधार पे ही वर्ण होता है। गुण और कर्म, जैसे आजकल किसके गुण है तो आईएएस ऑफिसर बनता है, या किसके गुण है तो, और कर्म है तो वैज्ञानिक बनता है। तो इस तरह से ये उस भाव से देखना चाहिए। और आजकल के दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होके ही लोगों को डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, प्रोफेसर बनाया जाता है, या आईएएस ऑफिसर बनाया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, सिर्फ एक जो शूद्र की जो परिभाषा है भगवत गीता में, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम, इसकी हमने और अपर्णा ने मिलके 24 या 25 टिप्पणियां देखी हैं। सब में ये कहा गया है कि शूद्रों का काम जो है वो औरों की सेवा करना है। अब औरों की सेवा, इसमें इसके पहले मेरे पास इस समय नहीं है कि मैं उसमें जाऊं, लेकिन इसके पहले वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण की भी परिभाषा है।
अब ये लास्ट में लिखा जा रहा है आखिरी में, शूद्रस अपि स्वभावजम, बहुत सिंपल सी चीज है। अपि का मतलब होता है भी, इसका मतलब वो तीनों का भी स्वभाव होना चाहिए सेवा करना। ये ऐसा नहीं कि ये इसका काम है सबकी सेवा करना, सभी का काम है सबकी सेवा करना, जो कि आनंद शंकर जी ने उस समय भी अपने व्याख्यान में कहा। बहुत अच्छा बीज मंत्र मुझे लगा उनका। तो इस भाव से अगर हम सोचते हैं और उस विचार से हम अगर व्यवस्था बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है। अब ये मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे यहाँ पे राजनीतिक प्लीज सर, संघर्ष Sir, चलता please रहता है। summarize. समराइज, ठीक है, थैंक यू। तो मैं आई विल टेक मे बी 2 minutes, इज दैट ओके? Yes, yes, yes. तो ये इसमें देखने की बात है कि जैसे पंचशील एक शब्द यूज किया गया है, तो यहाँ पे इसका दुरुपयोग किया जा रहा है कि पंचशील में सील कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको कहा गया है पंचशील, जिसके ये चीजें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन वगैरह वगैरह सब चीजें हैं। अब वो आपस में अब लड़ाई हो रही, पंचशील को पंचामृत बना दिया गया कि मोदी जी ने पंचशील को पंचामृत कहा। उसमें भी अमृत नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब ये स्ट्रेटेजिक चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको पंचामृत कहने से फिर अमृत की भी बड़ी, मुझे लगता है कि उस तरह से वो उनकी वो इज्जत नहीं रह जाती जो कि होनी चाहिए, क्योंकि वो बात दूसरी होती है। उसी तरह से ये आपके आज के युग में जो है उदय भी है, वो उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना, आप लोग उदय को तो आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ अमृत में अटल मिशन रिजुमिनेशन, अभी आप लोग तो जानते हैं कि संस्कृत एक बहुत गूढ़ भाषा है, उसके अंदर बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन उसको इस तरह से सतह बना देना, आज की सरकार की बात कर रहा हूँ, कि उसको अमृत को अंग्रेजी से डिफाइन करना, उसी तरह से हृदय को अंग्रेजी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन, मतलब ये हमारे अंदर मानसिक और बौद्धिक दास्ता इतनी ज्यादा घर कर गई है कि इसको जल्दी से हटाना बड़ा मुश्किल है। नीति आयोग बना हुआ है, मैंने डाला उसमें गूगल में, तो नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अब आप लोग नीति और अनीति की बात करते होंगे संस्कृत में, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा यहाँ पे। ऐसा मतलब मुझे मेरे गांव की एक भाषा याद आ जाए, ऐसा गोड़ा है इसको कि इसकी उम्मीद नहीं है कि ये चीज आगे बढ़ सकती है। तो अब उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में हम अपनी चीजें ले आ सकते हैं, जैसे पंचतंत्र की बात कर सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ की, इनलाइटेंड एजुकेशन की, प्रॉस्परस, तो एक हमारा नॉन वायलेंस की, राइटियस गवर्नमेंट, राम राज्य की परिकल्पना कर सकते हैं। पंचमंत्र की बात कर सकते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, परसूट ऑफ ट्रूथ वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ये चीज मैंने करीब 2007 में लिखा हुआ था। तो उसको अगर हम उस भाव को लेकर अगर आगे बढ़े, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो शिक्षक वर्ग है इस चीज को देखे, तो शिक्षा के जरिए ही किया जा सकता है। मैं आप लोग जानते हैं हायर एजुकेशन में जो क्या क्या हो सकता है, उसमें फैकल्टी अब इंटरनेट पे कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कैसे हो सकती है, ये सब की विचार करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ग्लोबल एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आर्थिक रूप से धन के रूप में भी अगर देखें तो $10 ट्रिलियन का बिजनेस है, और आपके पास 600 मिलियन लोग हैं जो यूथ हैं, तो किसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी हमको सोचना चाहिए। ये चीज 2014 में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी का एजुकेशन जिस तरह से हो रहा है वो नहीं चलेगा। ये अमेरिका की बात है, हम लोग तो अब आज देख रहे हैं वहां भारत में, क्योंकि हम लोग नकल के चक्कर में ज्यादा परेशान रहते हैं, कभी इस चीजों को देखते नहीं है। तो हमारे यहाँ की व्यवस्था रही है। इसके पहले का जो एक तरह का आंदोलन हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था शिक्षा के जगत में, वो हुआ था जब किताबें छपना शुरू हुई थी 1440 में। अब 2020 में इंटरनेट ऑनलाइन हो गया है। तो अब अगर हम इसका किताबें, पहले किताब जो छपी थी वो बाइबल छपी थी, अगर भारत में अगर ये व्यवस्था की जाए तो आज शिक्षा के लिए सारी चीजें ऑनलाइन की जा सकती हैं, तो सारे पूरे दुनिया को इसका फायदा हो सकता है। फ्यूचर ऑफ कॉलेज इज ऑनलाइन एंड इट्स चीपर, ये चीज 2 दिन पहले की कहानी है, न्यूयॉर्क टाइम्स की 25 मई की कहानी है। तो ये इतना सोच रहे हैं, लेकिन हम अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं। कार्यान्वित करना बहुत जरूरी है, और वो हम सरकार शायद नहीं कर पाएगी, हम शिक्षक ही स्वयं कर सकते हैं। उसके कई गुण हैं, मैं उन शिक्षा आप लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंस्ट्रक्शन के जो तरीके हैं टीचर, आचार्य और गुरु के हैं, इनको हमको उसमें समाहित करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, और तभी ये हो सकता है। ये संसार उसके फेवर में नहीं है। मैंने ये अपने जो ज्ञान है, भारत के ज्ञान के हिसाब से एक काढ़ा बनाने की पद्धति को मैंने इंटरनेट पे डाला था, यूट्यूब में काफी पॉपुलर हो रहा था, उसके यूट्यूब ने उसको निकाल दिया, और उसको निकाल ये कह के निकाल दिया कि shouldn't be designed to help or encourage
others to imitate them. हमारे यहाँ का आचार्य व्यवस्था है कि जो कि हम अपने आचरण से बच्चों को बताते हैं या स्टूडेंट्स को बताते हैं। यहाँ पे यूट्यूब कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप अपने आचरण से वो ये नहीं बता सकते किसी को उसको उसके आधार पे करे वो। तो ये इनकी व्यवस्था इस तरह की हो गई है, और उनके इसलिए हो गई है कि उनकी सोच दूसरी है। उनकी सोच, जैसे आनंद शंकर जी ने कहा, कि है कि वो किसी तरह सत्ता में बने रहें। तो थॉमस जेफरसन का विचार जो है, वो फाउंडिंग फादर थे अमेरिका का, उनका ये शिक्षा का मतलब होता है कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। महात्मा गांधी जो कि भारत के परम पिता माना जाता है, उनको फादर ऑफ नेशन माना जाता है, वो ये कहते हैं कि हमको इसको ऐसा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा हो कि अपने मन और शरीर को दोनों को अपने बस में करके समाज की सेवा करे। तो मैं इसी तरह पे यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ, ये कह के कि अगर हम ये सोचते हैं कि सारे संसार को बदल सकते हैं, जो कि मैं सोचता हूँ सारे संसार को बदल सकते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगले हमारे पास 1 साल का समय, 9 महीना से 1 साल का समय है इसको नेतृत्व का लेने का, और उसके बाद 10 साल का समय है इसको ठीक करने का। उसमें ये बहुत क्रेजी सी आइडिया लगती है, मुझे भी लोग बोल चुके हैं इस तरह से, लेकिन एक स्टीव जॉब्स जो एप्पल जिसने शुरू किया था, उसने ये कहा था कि पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु रियली डू। So I hope that we get that message and get on to it. Thank you so much. आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। Thank you, sir. Thank you. We all are aware that you are a professor with interest in science and philosophy, and particularly in Vedantic philosophy. So your lecture was full of that only. आपने जो ईश्वर और गॉड का डिफरेंस समझाया, वो भी आपकी फिलोसफिकल अप्रोच को बताता है। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक, इंस्पिरेशनल, हर तरह का लेक्चर था सर। काफी चीजें उसमें समाहित थी। वेरी वास्ट एंड वेरी वंडरफुल। एंड भारतीय परंपराओं को जो आपने वहाँ यूएस में रह के भी हमें सहजता से बताया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। मूविंग अहेड, आवर अदर स्पीकर इज प्रोफेसर के श्रीवास्तव सर। ही इज चेयरमैन ऑफ दिस सेशन ऑल्सो, एंड उनका मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ इंट्रो देना चाहूंगी। इस सत्र के दूसरे प्रधान वक्ता के बीच वक्ता हमारे बीच में हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर कौशल कुमार श्रीवास्तव जी। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल, पीएचडी डिग्रियों से सम्मानित हैं। अपने अध्ययन काल से ही आपने अनेक स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किए हैं। एआईओसी द्वारा आयोजित अनेक सम्मेलनों में आपके द्वारा विविध विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं सर, और आपने कई शोधालेखों को पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किया है। दर्शन, व्याकरण, साहित्य जैसे विषयों में आपकी रुचि है। इस समय आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में वरिष्ठ आचार्य पद पर सेवारत हैं सर। आपका आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन का रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धि हेतु योग की प्रासंगिकता। सर, हम आपका वेलकम करते हैं कि आप इस सेशन में अपने वक्तव्य को रखें। प्रोफेसर श्रीवास्तव सर, सर आवाज आ रही है? प्रोफेसर के श्रीवास्तव सर, उनका शायद मुझे लग रहा है फ्रीज जैसा हो गया है फोटोग्राफ, तो देख रहे हैं उनको। धन्यवाद अपर्णा जी। नहीं आ गया सर, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ प्रारंभ करें? हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। शुक्ला जी प्रारंभ करें? जी सर जी, प्रारंभ करते हैं। रोग प्रतिरोध वृद्धि एक योग की प्रासंगिकता, यह विषय है। पूर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह, ईशावास्योपनिषद का यह मंत्रांश हम भारतीयों की कर्मठता एवं जीवित रहने की उत्कट अभिलाषा का प्रेरक है। उपनिषद के इस सिद्धांत को जानते हुए या बिना जाने ही मनुष्य इसका अनुसरण करता है, क्योंकि सब उपनिषद पढ़े नहीं होते। जो नहीं पढ़ते वो भी इसको कर्मठ रहना और कार्य करना बखूबी जानते हैं और करते हैं। उपनिषद का ज्ञान न रखने वाला भी कर्म करना और जीवित रहना चाहता है। मानो मध्यारीरिषदायुर्गंतो, अर्थात हमारे जीवन की गतिशीलता को
बीच में खंडित न करिए। वैदिक ऋषि की यह प्रार्थना द्योतित करती है कि वह अपने जीवन को बिना बाधा के पूर्णतया जीना चाहता है और उसमें रुचि रखता है। वो उस जीवन से को पसंद करता है, किंतु बाधाएं हैं, वो न आए तो कैसे आएंगी जरूर। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाह्य आक्रमण तथा अन्य दैवी आपदाएं समय समय पर मानव जीवन को असुरक्षित करती ही रहती है। मानव जीवन की सुरक्षा में जो सेंधमारी करते हैं, ऐसे अनेकानेक कारकों में विषाणुओं की प्रबल भूमिका है। सार्स, इबोला, जीका, निपाह, H1, HIV इत्यादि विषाणु दीर्घकाल से मानव जीवन में संकट उपस्थित करते आए हैं। विषाणुओं की इन्हीं घातक श्रृंखला में चीन प्रसूत कोरोना नामक विषाणु ने विश्व में प्रचंड तांडव मचा रखा है। इस विषाणु से उत्पन्न रोग का ही नाम है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज। इस बीमारी से समूचा विश्व पीड़ा से कराह रहा है। वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों की राय में अभी तक कोई भी सर्वमान्य औषधि नहीं आविष्कृत की जा सकी। शोध कार्य प्रगति पर हैं, चल रहे हैं विभिन्न देशों में, भारतवर्ष में भी है, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब लगे हुए हैं। सर्वमान्य औषधि के बिना इस रोग की रोकथाम यह एक विकराल समस्या है। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए या हो जाए तो निदान कैसे किया जाए बिना औषधि के, ये बड़ी विकराल समस्या है। इसी के निदान पर विचार करते करते हमारा ध्यान रोग प्रतिरोधक क्षमता की ओर जाता है। क्या है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता? अभी प्रोफेसर बलराम सिंह जी ने अपने व्याख्यान में विस्तार से बताया। वो विज्ञान के विद्वान हैं। 14 में हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कराया था, तो आप हमारे मुख्य अतिथि थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और आपका बड़ा सारगर्भित महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? इसका सीधा उत्तर है सरल, हम लोग वैज्ञानिक नहीं है, जो समझ में आता उतना कह रहे हैं। उत्तर है रोगों से लड़ने की सामर्थ्य। यही है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानी जाती है। जीवन के विघातक बाह्य आक्रांता जो विषाणु है, वो हमारे शरीर के अभिरक्षित करने वाली जो प्रणाली है, जिनको मित्र विषाणु कहा अभी प्रोफेसर सिंह ने, तो हमारे शरीर में मित्र विषाणुओं की एक पूरी फौज है, सेना है। और विषाणु कैसे रक्षा करते हैं, तो हमारे यहाँ संस्कृत में एक बड़ी अच्छी कहावत है, विषस्य विषम औषधम। विष की दवा विष ही होती है। तो विषाणु हितकारी भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। इसलिए उन मित्र विषाणुओं में ये सामर्थ्य बनी रहे कि जो शत्रु विषाणु हैं उनको वो पराजित कर सके। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा जो इसे अंग्रेजी में इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, ये देहाभिरक्षिका प्रणाली जितनी सुदृढ़ होगी, रोग फैलाने वाले विषाणुओं पर शरीर उतनी ही शीघ्रता से विजय प्राप्त कर लेगा। जीवन की सुरक्षा इस प्रणाली की निर्भर। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात ध्यातव्य है, वो ये प्रिवेंटिव नहीं, अपितु रोगी को रोग भी है, इसी से रोग ठीक भी रुकती भी है और ठीक भी इसी से होती है। तो यह रोगी को रोग मुक्त कर देती है पूरी तरह से। यही रोग प्रतिरोधक क्षमता औषधि का कार्य करती है। अभी हाल में इजराइल देश ने कोरोना की एक औषधि का आविष्कार किया है,
जिसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिरोधक की अनेक प्रतियां। रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडी की बहुसंख्यक प्रतियां बनाकर रोगी के शरीर में सुई द्वारा डालने पर यानी इंजेक्ट कर देने पर प्रतिरोगियों की सेना, जो प्रतिरोधक विषाणु मित्र विषाणु हैं, उनकी सेना कोरोना के जो स्पाइक्स बने होते हैं उन पर चिपक जाती है। कहते हैं, उन्होंने दिखाया कि ये वाई के आकार की होती है, उसके विषाणुओं पर चिपक जाती है और उसे रक्त कोशिकाओं में जो स्पाइक्स को जमा देता है उसको नहीं रुकने देती है, जमने ही नहीं पाता। परिणामतः कोरोना मर जाते हैं और रोगी स्वस्थ हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने के कार्य में वर्णित है। फल प्राप्ति हेतु लगाए गए आम के पेड़ से क्लांत पथिक को शीतल छाया तथा सुगंध भी प्राप्त होती है। आपस्तंभ स्मृति हमारी कहती है, यथा आम्रे फलार्थे निमित्ते छाया गंध उत्पत्ति। तो प्रयोजन कुछ और रहता है, मुख्य गौण प्रयोजन भी कभी कभी बड़े काम का होता है ना। तो जो यह पातंजल योग दर्शन है, यह एक मोक्ष शास्त्र है। इसका परम लक्ष्य कैवल्य है, किंतु इसका आनुषंगिक फल भी किसी महौषध से कम नहीं है। आनुषंगिक फल महौषधि कैसे है? योग के प्रसिद्ध अष्टांग कैवल्य के उपाय है। इस मार्ग पर चलकर हम अपने शरीर व मन को स्वस्थ रखते हुए कैवल्य तक पहुंच सकते हैं। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को समृद्ध करने वाले 8 योगांग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। शरीर को क्षीण करने वाले जो दोष हैं, उन दोषों से बचाने वाले जो साधन हैं, वही है यम। यम उपरमे धातु से यक्षत्यनेनिति, जिन साधनों से दोषों से विरत हुआ जाए, इस अर्थ में नंदिग्रह पचादिभ्यो लुडिन्यचः से अच प्रत्यय करके यमः पद निष्पन्न होता है। ये यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम ये निवृत्ति परक योगांग हैं। ये अनुष्ठित किए जाते हुए साधक के मन तथा इंद्रियों को बुरी हानिकारक आदतों से विरत कर देते हैं। योगांगों में सर्वप्रथम उपदिष्ट साधन यम है और यमों में भी प्राथमिकता दी गई किसको? अहिंसा। अहिंसा यम की साधना में, अहिंसा नामक जो यम है, इसकी साधना में ये नहीं कि अहिंसा नामक कोई क्रिया करनी पड़ती है। तब क्या करना होता है? हिंसा न करना को वादी हिंसा। तो हिंसा यम में प्रथम स्थान दिया गया। तो प्रवृत्ति समाज में यह हिंसा शारीरिक भी होती है, वाचिक भी होती है, मानसिक भी होती है। इससे हम दोनों तरह से संत्रस्त कर सकते हैं, तीनों तरह से। शरीर को कष्ट देना, किसी को मार डालना, काट डालना, चोट पहुंचाना इत्यादि। मानसिक पीड़ा, उसके अंदर इतना संताप पैदा कर देना कि वो अशांत चित्त हो जाए। वाचिक, ऐसी वाणी बोला, कहा तिल मिला उठे, ऐसा कह दिया, ये कहना, ये वाचिक हिंसा है। तो हिंसा के विविध भेद हैं, बहुत भेद बताए गए। योग शास्त्र में बड़ा लंबा भेद है। कृतकारित अनुमोदित हिंसा, लोभ मोह और क्रोध के कारण की गई हिंसा। मोह लोभ के कारण जो हिंसा की जाती है, वो यदि हमें जीवा लोलुपतावश मांस खाना है तो उस प्राणी की हिंसा करते हैं, मांस के लिए हिंसा कर देते हैं, चर्म के लिए हिंसा कर देते हैं। केशेषु चमरी हंति, देखा चमरी मृग को मार देते हैं केवल केशों के लिए। इसी तरह क्रोधवश हिंसा होती है कि आज इसकी खैर नहीं, इसने हमारा अपकार किया था तो उसको दंड देने के लिए। इसी तरह से मोह अज्ञानतावश भी हिंसा होती है, क्या अमुक की बलि दे दीजिए तो बड़ा लाभ होगा। यह हिंसा के विविध प्रकार मिलते हैं। फिर
कृत कारित अनुमोदित हिंसा, कृत स्वयं करिए, कारित किसी से करवा दीजिए, और न करिए तो उसको आप अनुमोदन कर दीजिए। हिंसा के ये इतने योग शास्त्र में बड़ा विस्तार है। ये कहा गया एवं असंख्यातः भेदा, व्यासदेव कहते हैं भाष्य में कि इसके अगणित भेद हैं। पहले 81 तक गिना गए, फिर उनकी हिम्मत छूट गई, कहा कि इतने प्रकार के प्राणी हैं और सब प्राणियों में अगर इन सब भेदों को लागू करेंगे तो इनकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। इतने भेद हैं हिंसा। उनका जीवन अपघात करता है या दैहिक शारीरिक अपघात करता है, स्वयं वह अशांत रहता है, समाज व कानून का भय उसे तनाव में रखता है। भोजन के लिए जीवालोलुपतावश की गई हिंसा से जन्य भोज्य पदार्थ जो शरीर में नानाविध रोगों को जन्म देते हैं। इसीलिए आप देखें कि विदेशों में भी वेजिटेरियन क्लब्स बन रहे हैं कि जिससे इससे बचा जाए हिंसात्मक। वर्तमान महामारी का जो कारक है विषाणु कोरोना, वो भी हिंसा का एक उपाधि। चीन देश के वुहान नगर में वन्य पशुओं की विशाल वधशाला है और वहां बाजार भी है। इसी वधशाला से प्रयोगशालाओं में, बाजार में जीवित, मृत एवं अर्धमृत जीव जंतु भेजे जाते हैं। वहां जीवित अर्धजीवित भी खा लेते हैं चीन। ऐसे रोग जो जीव जंतु जहां जहां भेजे जाते हैं उनसे कहीं न कहीं विषाणु निकल करके रोग फैलाते रहते हैं। सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इसके बाद आते हैं अहिंसा के बाद। तो सत्य, स्तेय और अपरिग्रह, ये जो 3 नियम है, इनमें सत्य है असत्य भाषण से बचना, स्तेय है किसी की इच्छा के बिना उसका धन आदि उसका कोई सामान न उठा लेना, और अपरिग्रह है जरूरत से ज्यादा संपदा इकट्ठा करने में अपनी जान न लगा डालना। ये 3 नियम हमारे मानसिक तनाव को छीण करते हैं। मानसिक तनाव भी रोग कारक है, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को मालूम क्या क्या हो जाता है। तो ये 3 नियम हमको उस मानसिक संताप से बचाते हैं, उसको क्षीण करते हैं जो हम धन करने कमाने में लगा देते हैं। असत्य भाषण, परद्रव्यापहरण एवं आवश्यकता से अधिक धन संग्रह, इनसे विरत रहना, इसी से इन तीनों नियमों का परिपालन हो जाता है। और हमें मानसिक सर निवेदन है थोड़ा सा जल्दी करें। इंद्रिय का जो संयम है, जननेन्द्रिय का संयम है, यही ब्रह्मचर्य है। असंयम ये शरीर को, शक्ति को, इंद्रिय हैं कि जब यहाँ पर यमराज तो रिजेक्ट कर देता है, उससे सर्व इंद्रियां, हमारी इंद्रियों को भोग शिथिल, शक्ति को शिथिल कर देते हैं। हमारे शरीर में वीर एक तरह से एनटीपीसी ऊर्जा का केंद्र जैसा है। ये ऊर्जा भरी रहेगी तो कोई भी रोग हमारे पास नहीं पटकने पाए। सामवेद का एक मंत्रांश बताते हैं ब्रह्मचर्य का, जिसमें महात्म्य है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम आघनत, ये सामवेद 11:5-19 में कहा गया कि देवताओं ने मृत्यु तक को जीत लिया इससे, जब वो ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रवृत्त हुए। तो ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति हमारे बल, तेज, वीर्य की रक्षा करके शरीर की पोषण क्षमता को, शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को बना देती। जो असंयमित ब्रह्मचर्य न करके असंयमित जीवन जीना है, वो हमारे शरीर को निस्तेज, बलहीन, रोगोन्मुख बनाते हैं। अब ब्रह्मचर्य की साधना से हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता, हम रोग पर विजय पाने में स्वांग है। नियम ये भी 5 हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो 5 बताए गए। यम जहां पर निवृत्ति परक हैं,
योगांग हैं, वहीं पर नियम प्रवृत्ति परक योगांग है। वहां कुछ न करने के लिए कहा जाता है, मना करते हैं, यहाँ करने के लिए कहा जाता है। संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। संतोष अधिक से जितना हमारा काम चल जाए उससे अधिक की अनुपात करने की इच्छा न करना, स्वाध्याय रही। ओंकार ही है, वहां चाहे वो जिस नाम से जाप करें सब उसी को जाता है, अल्लाह, खुदा, जो कहें, गॉड कहें, तो उसका जप करना, यह स्वाध्याय है। अथवा मुक्ति शास्त्र का अध्ययन करिए, यह स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान पर अभी आनंद शंकर जी ने भी चर्चा किया, प्रोफेसर बलराम सिंह ने भी चर्चा किया। ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ हम करें वो तस्मिन परम गुरु अर्पणम, आपके लिए कर रहे हैं। और जब ये सोचकर करेंगे तो बुरा करेंगे ही नहीं, अच्छा ही करेंगे। इसलिए ये तीनों जो नियम है, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये भी मन शांति के उपकारक हैं, इसकी वृद्धि करते हैं। शौच तथा तप, इनका सीधा संबंध शरीर की सुदृढ़ता से है। तो पहले शौच की बात करते हैं। सर थोड़ा सा समराइज करना होगा, क्योंकि अभी हमारा ये सेशन 7:15 तक था और अभी 2 स्पीकर्स और हैं। ठीक है, संक्षेप करते हैं जी। तो शौच में 2 प्रकार की शुचि है। शुचिता आंतर और बाह्य, 2 भेद बताए गए। आंतरिक जो शुचिता है वो राग द्वेष मलादि का निवर्तन है। बाह्य जो शुचिता है उसमें भी 2 प्रकार की शुचिता है। आसपास की सफाई रखिए, शरीर की सफाई रखिए। शरीर की सफाई रखने पर हमारे रोग हमसे भागे रहते हैं। इसीलिए छोटे क्लास में पहले कविता पढ़ाई जाती थी, उठो सवेरे रगड़ नहाओ पहला काम। जो नहीं नहाते, जाड़े में प्राय लोग नहीं नहाते, उनके लिए भी विधान है। उनके लिए क्या किया, 1 महीने का कहा माघ मास स्नान करो आकर के, तो धर्म से जोड़ दिया, जाकर स्नान करिए। तो शरीर की सफाई रखना, ये बाह्य शौच है। इसमें इसी का एक और अंश है बाह्य शौच का, मेध्याभ्यवरण, पवित्र भोजन, शुद्ध भोजन। अशुद्ध भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कारक है। कहते हैं जैसा भोजन वैसा स्वास्थ्य। यदि हम भोजन ठीक करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भोजन हम करें तो, लेकिन उपलब्धि यह है पाएं कहाँ, शुद्ध भोजन। तो उसके निमित्त हमारे ऋषियों का इसके साथ ये संदेश भी है कि हम अपने लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था किए रहें। अन्न जल आदि को इतना अधिक शुद्ध रूप में प्राप्त करें। इसी संदर्भ में हम एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। हमारे जो महान कवि थे, क्रांतिकारी थे, उपन्यासकार थे और राष्ट्रगीत के रचयिता थे, वंदे मातरम, तो उस पे उन्होंने पहली ही पंक्ति में, पहले शब्द में कहा हमारी भूमि कैसी हो, सुजलाम। जल हमें पीने के लिए, शोभनानि जलानि यस्याम ताम सुफलाम सुजलाम। जिसमें जल के जितने स्रोत हैं, हमारे नदियां, सरोवर, सब पवित्र जल से, शुद्ध जल से भरे हों, ऐसी भूमि की वंदना करते हैं। और जल भरे होंगे तो सुफलाम, फल भी हो, फल भी अच्छे मिलेंगे। शोभनानि फलानि यस्याम ताम सुफलाम। तो सुजला सुफला हो, सस्य श्यामला हो, अन्न संपदा हमारी भरी हो, इससे युक्त रहेंगे तो हमारा ये बाह्य शौच पूर्ण रूप से परिपूर्ण होगा। एक बात इसमें और है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बड़ी विकट है। इस पर हमारे उस क्रांतिकारी कवि का ध्यान गया। उन्होंने कहा भूमि को मलयज शीतलाम, मलय जन्य शीतलता। चंदन आदि के वन, चंदन तो उपलक्षण है, सारी वन्य संपदा, जितना अधिक वन होगा उतना अधिक हमारी धरती शीतल रहेगी। तो शीतलता का जो मानक है, ये उन्होंने, उनको अनुमान हो गया था, हो सकता है वनों का क्षरण प्रारंभ हो गया हो उस समय, इसलिए उन्होंने ये लिख दिया ये हमारी मातृभूमि सदैव ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त रहे, इसके लिए हमारी मातृभूमि कैसी हो, मलय जैसी कलाम। तो ये बाह्य शौच हो गया। और तप की बात कर लेते हैं, संक्षेप कर दिया हमने शौच को। तप में जो तपश्चरण है ये व्रत है। हम भोजन को सुबह दोपहर शाम
और अनेक प्रकार के नाम देते हैं। ये लंच है, ब्रेकफास्ट है, ये डिनर है, तमाम तरह के नाम देकर भेद प्रभेद से ढेर सारा भोजन करते रहे। इसके लिए हमें 1 दिन 2 दिन ऑफ रखना चाहिए, पेट की चक्की को आराम देना चाहिए। इसके लिए कई व्रतों का विधान है, उन व्रतों को रखते हैं। आज भी लोग, कोई सोमवार रहता है, कोई रविवार इत्यादि व्रत रहते हैं। उसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रख सकते हैं। ये तप है। तप में द्वंद्व सहन की क्षमता आ जाती है। वेदांत किसी को तितिक्षा कहता है। द्वंद्व, हमारे जीवन में द्वंद्व भरे पड़े, सुख दुख लाभ हानि इत्यादि जितने भी शीतोष्णादि हैं, शरीर इनको सहने लायक दृढ़ हो जाता है। हमारी ऐसी क्षमता बढ़ जाती है रोग प्रतिरोधक, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और हम इनको तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में यम नियम के साथ आसन और प्राणायाम। आसन स्थिर सुखम आसनम, जहां पर आप, योग सूत्र है ये पतंजलि का, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आराम मिले, ऐसे आसन पर बैठ करके तब आप ध्यान आदि करिए। तो आसन, अब बाबा रामदेव देखते हैं कितना आसन बता डालते हैं। तो वो जितने भी आसन हैं, पद्मासन, हस्त निषूदासन और उष्ट निषदनासन, अनेक आसन है, वीरासन। तो आसनों के विविध प्रकार हैं। इन आसनों से भी शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां, ये सब सुदृढ़ होती है। और उसके बाद प्राणायाम पर आते हैं। समय कम है इसलिए जल्दी कर दे रहे हैं। प्राणायाम शरीर से प्राणवायु का बाहर निकालना और अंदर ले आना। श्वास और प्रश्वास, इनके भी भेद है, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। पूरक, रेचक, कुंभक और एक केवल कुंभक। अब समय नहीं है इसलिए उनके डिटेल में नहीं जाते, किंतु प्राणायाम के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता है। और उस वायु को हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं बराबर, उससे बचना हो। जिससे हमारे वैदिक ऋषि जो का ध्यान रखते थे, तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम, हमारे पास वो वायु औषधि है। औषधि कहीं से थोड़े ढो के लाता था, ये ढो करके जैसे मोदी जी ने भेज दिया दवा ऐसे लाता था ना। वो शुद्ध रहे, वही शुद्ध वायु ही औषध है। अशुद्धि उसमें ना आए, ये औषध है। इस शुद्ध वायु को पूरक के द्वारा ग्रहण करना, रेचक के द्वारा निकालना, कुंभक के द्वारा उसको स्थिर करना, इससे हमारा शरीर परिपुष्ट होता है। और ये हमारी श्वसन तंत्रिका पर ही कोरोना हमला करता है। और यदि हमारी श्वसन तंत्रिका दुरुस्त रहेगी प्राणायाम से, तो फिर कोविड-19 से छुट्टी रहेगी। ये इतने आवश्यक अंग हैं। बाकी जो अंग हैं वो मुक्ति के लिए आवश्यक हैं, कैवल्य के लिए आवश्यक हैं। उनसे भी मन शांति मिलेगी। प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, उनसे भी हमारा चित्त सुदृढ़ होता है, शरीर स्वस्थ होता है। तो अपर्णा जी का संकेत है, समय कम है, तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और धन्यवाद आप सब। धन्यवाद सर। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताते हुए आपने योग के सभी अंगों और प्रत्यंगों की प्रासंगिकता को यहाँ रखा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खास तौर पे। तो आपका बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक वक्तव्य रहा। अब मैं अगले वक्तव्य के लिए प्रोफेसर ललन प्रसाद जी को, हाँ जी धन्यवाद। अब मैं अगले वक्तव्य के लिए प्रोफेसर ललन प्रसाद सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर हमारे वेव्स जीसी के मेंबर भी हैं एंड उनका टॉपिक है पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमी, स्पेशल रेफरेंस टू कौटिल्य अर्थशास्त्र। मैं सर का थोड़ा सा ब्रीफ बायो यहाँ देना चाहूंगी, बिल्कुल 1 सेकंड में ही दे दूंगी। मिला दो जी। सर जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं और अक्सर यहाँ पर आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में उनके कहीं ना कहीं इंटरव्यूज आते रहते हैं और इसी बात पे इकोनॉमी को लेकर ही मुख्यतः वह अपनी बातचीत को रखते हैं। He is ex-dean and HOD of Business Economics, University of Delhi. He is an experienced senior executive with demonstrated history of working in the education management industry. Professor Prasad is skilled in non-profit organizations, creative writing, lecturing, editing, and public speaking. He's a strong business development professional with BCom gold medalist from BHU and doctorate in management from Punjab University. His thoughts are basically focused on business, economics, commerce, and management. Sir, we welcome you for your talk, sir. Thank you, Aparna. Professor Srivastava, Professor Balram Singh, Dr. Shashi Tiwari, learned speakers, Anita Singh Gupta ji. I would like to concentrate on a few points
which have been mentioned in your concept paper of this conference. Let me first begin with the environment. A few years back, I was directing a World Bank project on cost-benefit analysis of Yamuna River. In course of investigation, we have to visit Yamuna River very often, and we saw at many places in the river fermentation, chemicals coming out. Now think of a river where a lot of chemical is flowing freely. The fishes are taking it, the same fishes are being eaten by the people, and that water mixed with chemical is being used for producing a lot of vegetables on the banks of the Nile. The amount of loss which the country suffers from the destruction of wetlands is tremendous. You know, the wetlands are important, the line which is on both the sides of the river for a few meters or few miles at times, depending on the size of the river. Wetland serves as a filter of the water, and that water goes inside the land, inside the earth, and that is water which is extracted for drinking water in cities and everywhere. And when we destroy the wetland, what will happen? So both that our health is being affected by destroying the wetlands and by polluting the rivers, and the economy suffers a lot. If you look into deeply, not only Jamuna, but most of the rivers in India, they are highly polluted. I remember when I was a child, say about 7 years back, seven decades back, I should say, we used to swim the Ganga river from one part to other part. And the river was so clean that you could even see a coin which is lying on the surface of the river and on the land in the river. And today the situation is that river is so polluted, it is black at the places, it is full of the things which are coming from tanneries, from manholes, from rubbish from cities. And then you just can't drink that water. And at that time we could use, not only that we used to drink that water, it was that water which we used to pour on shivling. It was that water with which we used to prepare our food. And it was that water with which we used to drink. So things have changed a lot. This corona has given some opportunity to people to look into that how the rivers can be clean. And at the time it is told that Ganga looks a little better, much better than what it was 2 months back when the corona started in this country. If we can preserve our environment, we not only gain economically, but we gain in terms of health, in terms of happiness, in terms of prosperity, in terms of well-being of our people at large. And our rishis had worked a lot over vegetables, over herbs, which are found in different parts of the country. And if we use them thoroughly, if you use them, we can gain a lot. I remember I had opportunity to go to Kailash Mansarovar with Muniji, the Swami of Haridwar. And Balkishan ji was also with us in that team. And at places, Balkishan ji used to show us the herbs which can be used for different type of diseases. And one place I remember on the bank of Brahmaputra, he showed me a herb which could be used for the treatment of cancer. Such a vast knowledge is hidden in our scriptures, and we have not been able to use it much. Ayurveda has not been given that place of prominence in this country which it deserves. Well, friends, a lot of things have been said about environment. And our saints and philosophers have been talking about in past, and they have
taught us as to what are the types of herbs, what are the types of vegetables, what are the type of fruits and others which can be used to keep us healthy and also to develop the immunity. Professor Balram Singh has described about the immunity which can be inner and which can be outer also. Both ways we can gain if we try to understand what Ayurveda says, what Charak has said, or Susut has said, or what other eminent Ayurveda Acharyas have written. Now, when we come to Paryavaran or environment, we know that a lot of things have been said by our rishis. Mata Bhumi Putro Aham Prithibhya. Or for rivers, Ambitame Nabitame Naditame Devitame Saraswati. For Ganga, it was said, Devi Surjashwari Bhagavati Gange Tribhuvan Tarini Taral Tarangi. The Ganga water used to be clean. It used to be so clean that you could easily say that there can't be nothing more clean than Ganga. And there was a saying for Ganga that there are no germs in Ganga water. If you keep in a bottle, and it will remain for years and no germ will come. And this is not true for any river in the world. But now it's no more true because Ganga is so highly polluted. I told you the situation of Jamuna in Delhi. It is so polluted you can't drink water. In fact, we tried to work out the amount of water, drinking water, which if Jamuna is clean and we can get from it, trillions of bottles of drinking water would not be needed if rivers like Jamuna and Ganga and others are clean. But they are no more clean and we are facing the crisis in the world. Friends, there is a saying in our villages, Jaisa khave dhan, vaisa pave gyan. The type of food determines also your mental setup, your working of mind. And we can see it a little if we try to go into deep. What is happening in China? China has created a world crisis through the virus which it has generated in its lab. Now this virus was carried over by Chinese throughout the world. And if you look over as to how this has started in the beginning, the first countries which were affected in Europe were mostly the countries where a lot of visitors used to go from China, a lot of tourists used to go to China. Italy and Spain, they were worse affected, and still they are affected, worse affected. And lakhs of people died there. The virus started in Wuhan and then it spread over the whole world, and it has created an unparalleled crisis, I should say. And the economic damage has been tremendous. Now, the damage, the crisis which came out of this virus has been unprecedented in the world history. In the sense, never in the world history, so many people world over were locked in their houses for days together, for months together, and so on. The very people who have to run economy, the workers, the factory owners, the bankers, the administrators in government, in private offices, the trainers, the consultants, the scientists, the engineers, practically people in all fields of life, they have been locked and locked for days. Think of the tremendous amount of damage which economies world over would have suffered. The preliminary estimate says that it is something like $9 trillion loss which the world has already suffered. See, the total world GDP at the moment is about $200 trillion, of which $9 trillion is told to be lost. And it is likely to continue further because Corona is not going to be controlled so soon. No medicine has been yet found which can control this disease.
So for how many months it will continue, nobody knows. Although we all hope that in few months' time, some medicine will come and this deadly disease could also be fought for, just as human race has fought malaria, it has fought HIV, it has fought influenza, it has fought different type of flus. Corona also will be won over one day, but by the time it would have caused tremendous damage to the economy. We have our great thinkers in this country, and I would like to say a few things about what Kautilya has said about our lifestyle and things of that nature. There's a famous slok, Sukhasya Moolam Dharma, Dharmasya Moolam Artha, Arthasya Moolam Rajya, Rajyasya Moolam Indriya Jaya. Now this last line, Rajyasya Moolam Indriya Jaya, is very important. How much control we can have on our sense organs. Kam, Krodh, Mad, Moh, Lobh, how much control we can have. And the happiness lies into controlling these. Not that they have to be totally controlled, but what I should say, they have to be balanced. In Ishopanishad, you find Isha Vasamidam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat Ten Taktena Vinjita Magrida Kasva Siddhana. What our rishis say, that whatever has been given by nature is for everybody. It's not for you alone. Consume what is necessary for you. Leave others share. Are we doing it? Are the big countries doing it? Is China doing it? Is America doing this? The consumerism world over has become a nuisance for the human life. I should say a great nuisance for human life. Because the very theme on the present consumerism work is that the nature is for you and you exploit it to any extent as possible. This has been the thinking in the West and almost Western countries. They have been exploiting nature like anything. In India, we had a different perception of nature. And as we saw, when we say Mata Bhumi Putroham, or we say Briksha Nam Patay Nama, Aranyam Patay Nama, or we river or rivers, or we say that we should not cut trees which give milk, which give fruits. There is a beautiful slok by Chanakya where he says, those who cut the trees which give fruits and those who kill the animals which give milk, if these people go to heaven, then who will go to hell? For whom the hell is made if these people go to heaven? No, this was the thinking that we had in our ancient India. And even now, to a large extent, we are much closer to nature than the people in West are. And as many of our previous speakers have referred, for instance, for the trees like neem, peepal, bargad, and panchavati, the trees which were there in Panchavati, or tulsi, and a lot of other herbs which are being used since centuries. And now there is an effort, and it's good for the country and the world as a whole, that people are trying to understand why these trees are so important. Why not to kill them, why not to destroy them, how to preserve them, because that's the way we preserve our culture. That's the way we preserve our lifestyle. That's the way we preserve our health. Now, the lifestyle in this country, one of the points in our concept paper is on lifestyle and how the lifestyle which we had in past can be brought back, or some of that can be brought back. What have been the basic of the lifestyle in this country? Manu Maharaj is said to have written the first constitution of this country.
And he has defined dharma. Dharma doesn't mean religion in the sense which we talk. Something which we have to adopt. धारण करने की शक्ति, क्या क्या चीजें हमें धारण करना चाहिए. In that, the qualities which he has mentioned is, for instance, to speak truth, to be kind, not to go for crude, calm, mat log, go, 10 lectures that he has given. Similarly, Kautilya has talked about that. Many other ancient rishis have talked about that we have to control our senses if we want to lead a good life. In Kathopanishad, it is said that if you are if you are not controlling your senses, you are riding on the crocodile's back in the river. Riding on crocodile's back on the river, if you do not control your senses. That is what the human race is doing, has been doing. Now what, for instance, China has done. The lab which was devoted for research has brought the virus which has brought a killing disease for the whole world. Whether China has done it deliberately or it is not done deliberately, it's not a question. The question is, it has done it. What was the need to have research of that time? What for? Either it was for military purpose or it was for some other purpose. This type of mentality of the nations, politicians, people who run governments, people who are considered to be the leaders in the world, if they do the things of this nature, which affects the millions throughout the world, which takes millions of lives throughout the world, then how the humanity can prosper, how people can live a healthy life, how can they can go ahead, and how can we achieve what our rishis have talked about, the Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is a family. Now the West has been claiming that the world has become a family in that sense, that anything which is produced anywhere in the world is now being consumed everywhere in the world. That communication is so easy that you can talk to people sitting on thousands of miles away. You can see them, you can communicate them, as for instance we are doing now in an international webinar. We can see each other persons. We can see Professor Balram sitting in America, and he can see us sitting here. Yes, science has taken us to the heights which probably human mind would have never thought in past, say about 100 or 200 years back. But the type of situation which have been created in our markets and the way in which we have become a sort of tool in the hands of multinational corporations throughout the world. And we have become so much consumer-minded that we want everything in our house. Every object of nature has become an object of consumption for us. And we think that there is no harm in exploiting and producing whatever we want. Our wants must be fulfilled whether nature is there or whether the nature is not there. And that is what is happening throughout the world. The environmental crisis has come throughout the world. A health crisis has come at the moment. And so many crises which may come in future if we do not adhere to what has been said by our ancient traditions and what has been said. Now, one thing which have been there in your concept paper about the Sanskrit, the language of God. Please summarize. Okay. There is no doubt Sanskrit is a language of God. And the literature in Sanskrit is so rich. The grammar of Sanskrit is unique in the world. No other language has such grammar, such scientific grammar as Sanskrit has.
And then at this juncture, when we are fighting with Corona, the Sanskrit literature can be of great help to us. What Charak has written, what Sushruta has written, what other Ayurveda acharyas have written. Now Charak has said that if you want to live long, if you want to be Dirghayu, you have to maintain your health. It is just like you cannot cross a river if the boat is full of holes. If your health is not good, you can't have a good life. And then Charak also said that any disease, whether it is old, it is new, it has never been in the past, if it is there, it can be fought. It can be treated and we can be cured by that. Such was the thinking of our saints and philosophers who gave us the concept of Namaste, who gave us the concept of yoga, who gave us the concept of using herbs, aushadhis, and a lot of description of this we find in Atharvaveda, and then it's Upaveda, Ayurveda, and so on. Well, friends, the time is short. Thank you very much. Thank you, sir. I have talked by Professor Lalan, sir, how world economy got hit with the of the stock. पुरुषार्थों की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है और उपनिषदों को लेकर और संस्कृति देते हुए आपने अपनी बात को रखा और हमारा ध्यान केंद्रित किया। हम आपके प्रति हैं सर। आगे इस सेशन में हमारे साथ मैडम प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रानी रामा प्रसाद जी, थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगी। She is an entomologist, is popularly known for her passion for running and she independently worked in the field of religion. She lives in Trinidad and Tobago and travels a lot to India and Ethiopia. She's a wonderful speaker, writer, and thinker. Dr. Pandita Indrani ji. The topic of her presentation is again the theme of our this webinar, that is the and lifestyle to combat the COVID-19 pandemic with reference to Sanskrit literature. And I request you, ma'am, to be Shukla ji, may I be the host of this session because I have to take slides of ma'am. Already co-host, he is Professor Indrani. Okay, so Namaste, can you hear me? Namaste, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please continue. Yes. Namaste, Chairperson, Organizing Committee members, Department of Sanskrit, Ishwar Saran Degree College and WAVES. Thank you for allowing me to share a vision from Battles of Sanskrit, a book written by Rajiv Malhotra. Now, my focus is on the threats to meaning in Sanskrit text. When the Adhikar is handed over to Western academics and Western institutions, especially academics who are not insiders of the Next. So here we got, no, go back to that one. Yeah, here we got a picture of the book, The Battle for Sanskrit. And so William Jones is the Britisher who is credited with starting Orientalism. Orientalism is a way of studying that looks at the Indians as not educated, as childish, as in need of being saved. And if you look at the cover, you see Sir William Jones sitting, writing, while three pundits are sitting at his feet. And he sits there almost like the Vyasji. And this book asks the question, is Sanskrit political or sacred? Is it oppressive or liberating? Is it dead or alive? Next.
And here I want to read some reviewers, excerpts from reviewers. Next. Dayananda Bhardava, he has written, but their hidden agenda is to convince ignorant Hindus that the Vedas are myths and that the traditional claims are nonsensical. He's saying this of the Orientalists and the people who are translating Sanskrit texts today in Western academia. Not all of them, of course. Next. S.R. Bhatt says, this book calls upon traditional scholars to get out of their silos, a forceful defense against the onslaught of Western scholarship. I highly recommend it as a preparation for strategic debates. Next. Conrad Els, who's an Indologist and a great friend of India, he says, Westerners consider themselves very progressive when meddling in Indian affairs. The underlying spirit of civilizing the savages is the same. In other words, the Indians are looked upon as savages by those who are coming from the colonial and the Western academia, and we need to be saved. And he goes on to say, these kinds of academics, they are now trying to wrest control of Sanskrit studies from the oppressive, reactionary traditionalists, and increasingly succeed with the help of native informers eager for status and money that Western academics can confer. And he says, they try to carry away the adhikar, or the prerogative, to interpret Sanskrit texts so as to make Hindu look at their own tradition through anti-Hindu lenses. Next. Sampadananda Mishra of the Sri Aurobindo Foundation says, the Bhagavad Sanskrit has immense potential to equip and arm Vedic insiders with the required knowledge, not just to battle with outsiders, but more importantly, to preserve their own Sanskriti based on its indigenous principles. And he's suggesting here that the insiders, we need to join a suggested home team for serious intellectual exchanges on the issues concerned. Next. Next. Aparna, next. Right, so so the oral tradition, the Western-based academics, a lot of them are now giving a different kind of interpretation to these texts that we hold, some of them, many of us hold it sacred. And they call the oral tradition, it's not marginal, it's marginal to studying Sanskrit texts. In other words, you don't have to look at the oral tradition when you are studying Sanskrit texts and the Sanskriti. And they're saying this Sanskrit is a dead language. And who are the people that want to revive this? They are linking them to people linked to Hindu violence and people who are oppressive of the masses. The centers of Sanskrit studies first moved from India to Europe, and now it's in the United States, from where most of the academic Sanskrit research is emanating. American Orientalism, and I want you all to get acquainted with that term if you're not already. American Orientalism is the lens for studying the Sanskrit. Youths in social sciences are being prepared to produce new prescriptions, like new smritis, that detoxify what these Orientalists are saying, that the Sanskrit texts have a lot of toxic material. It's anti-Muslim, it's anti-Shudra, it's anti-women, and so on. Next. If left unchecked, if we, the Sanskrit lovers, don't check this, India will start importing knowledge about its civilization. When I say you, we who have to access this knowledge in English and who have to access it from writers, the American Academy, we will start imbibing what they are saying.
And I want to point to the Murthy collection at Harvard University was funded by a very wealthy, the Murthy family of Bangalore, and they are translating the Sanskrit texts, and the editorial team does not have anybody from India. Can you imagine that? That the Indian epics, Mahabharata and Ramayana and so on, are being translated and not a person from India, when this is India's national treasure. Now, Westerners understand the cultural wealth. They appreciate this wealth that is in Mahabharata, Ramayana, and other texts, the Veda, and so on. And they are mining this for the philosophical situation, for spiritual guidance, and for the potential for expanding systematic knowledge in fields for the mind sciences. Next. Hijacking the study of Sanskrit and Sanskriti. There are two interests that are hijacking Sanskrit studies: social scientists and humanities scholars. They are interpreting India's past and shaping its future by removing all that they say is toxic. Like I say, they are charging our literature with having anti-women, toxic material. And the second interest, scientists, environmentalists, spiritual seekers, self-help experts, and new thought gurus. These are seeking to mine the wealth of knowledge in Sanskrit and Sanskriti. Next. Sanskrit should be an ancient language that is used actively, like Mandarin, Persian, and Arabic. Now, Sanskrit Bharati is doing a wonderful job in reviving conversational Sanskrit reading. We need new literary works, plays, novels, etc. Now, these are suggestions given by Rajiv Malhotra. Remember, I am condensing this text of the Battle for Sanskrit, his analysis and his recommendations. And he says we need Sanskrit experts to conduct serious knowledge research. We need modern writings of Kavya and Shastra and updates of the old ones. Next. Sanskrit scholarship. There's a social science perspective on the critical historical tools. We need debates. Sanskrit scholars should be having debates designed to bring fresh insights, to link Sanskrit to both the Paramarthika and the Vyavaharika, to include transcendental understandings and the Adhyatma Vidya methods, to have new smritis by adhikaris who are invested in the tradition and who have the lived experience to write these new smritis. Can you imagine, I ask, secondary literature of Muslims, Christians, and others being written by persons outside of the tradition? Persons without the required adhikar? Can you imagine that happening at all? Stop translating away our identity. Stop translating terms that give us misrepresentations in the end. Like Atman can never mean soul. Namaste can never mean greetings. And Malhotra recommended a book with 108 Sanskrit non-translatable terms. And perhaps that's a good project for your scholars here to get involved in. You can make a list of these terms that are not to be translated and to put them in English, just like in English has karma and pandit and so on. We must begin to insist we use these terms and to re-Sanskritize Hindi away from the popular Urdu Hindi unspoken. Next. Shastras contain Indian
India's knowledge that's embedded in Sanskrit. And he's given a list here. Sanskrit has the intellectual wealth of India in specialized fields, waiting new experts, the experts in Sanskrit. It's awaiting you to study them. And he's given a whole astronomy, ceramics, chemistry, and so on. Next. Ancient knowledge for contemporary times. Malhotra is saying, let's use the ancient knowledge to solve today's problems. And I compliment you for doing that in this seminar. Very forward thinking.